कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्यों है ऐसा। जल्दी बताओ तब मैं आगे बढ़ूंगा। फाइव पॉइंट थ्री वर्क। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको जो मैंने पूछा है वो बताना होगा। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ 5.3 वर्क। As seen earlier, work is related to force and the displacement. So it is clear that work is related to force and the displacement over which it acts. Consider a constant force F is acting on that object of mass m. The object undergoes a displacement d in the positive x direction. So in figure 5.2. So first it is clear that if there is an object, okay. So there is having a mass of that object m, and if force is applying on that object, so this object displaces from this position, and the displacement occurs is d. So there is a three quantities you can see here: the force, mass of the object, and displacement. Force, mass, and what? Displacement. These things written over in this paragraph. So all these 1, 2, 3, 4, 5 sentences paragraph can be concluded in this simple diagram. You have to just see over here, not here. So this is the object, same object, and there is a force is acting on that object. It displaces. Displacement is d. X is x, and the angle created is theta. An object undergoes a displacement d under the influence of the force F. Just taking your mind the object having the mass m. The work done by the force is defined to be the product of the component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of this displacement. Thus, the work done by the force is defined to be the product of the component of force F cos theta into d is equal to force into d. तो यहाँ पे एंगल भी बन रहा था, इस वजह से F cos theta लिया गया. We see that if there is no displacement, thus there is no work done even if the force is large. Wow. We see if there is no displacement. अगर कोई displacement नहीं हो रहा है, then कोई भी work done भी नहीं होगा. If even the force is large. Highlight this sentence. ये बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन भी जीरो ही होगा, चाहे कितना भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे क्यों ना लगे. सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाया गया है लेकिन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो क्या वर्क डन होगा? ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में. ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे भी आ सकता है, तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है. तो वर्क डन नहीं होगा चाहे फोर्स कितना भी बड़ा लगे. Thus, when you push hard against a rigid brick wall, the force you exert on that wall does no work. So, this sentence is clear that if you act a force on that big wall
so there is no displacement of that wall happens, so there is no work. Yet your muscles are alternatively contracting and relaxing, and internal energy is being used up, and you do get tired. You also feel tired. Thus, the meaning of work in physics is different from its usage in everyday language. तो ये मैंने सबसे शुरू में बताया था कि जो हम वर्क हम फिजिक्स में देखते हैं और जो हम रियल लाइफ में वर्क देखते हैं वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अगर सपोज ये यहाँ पर बहुत बड़ा कंक्रीट का वॉल है, ये कंक्रीट का वॉल है, ठीक है। अब आप लोग इसमें इस वॉल पे फोर्स लगाओ, अब इस वॉल पर आपको फोर्स लगाना है, लेकिन इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आपने जो फोर्स लगाया है इसमें, इस वॉल पे आपका पूरा एनर्जी यूज हुआ, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, आप टायर्ड भी हुए, लेकिन ये थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? इस वॉल पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन भी होगा क्या? नहीं, वर्क डन 0 होगा। यही बोलना चाह रहा है कि जब आप किसी भी चीज पर आप मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उसमें आपका एनर्जी भी यूज हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हो। तो जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, फोर्स लगाने के कारण, तभी वो वर्क डन कहा जाएगा फिजिक्स में, ऐसा। लेकिन जब हम रियल लाइफ में देखते हैं कि कोई जैसे पहाड़ को, छोटा सा पहाड़ को पत्थर है, उसको धक्का दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम जब उसको देखेंगे, तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें उस फोर्स के कारण, तभी हम ये कहेंगे कि उसमें क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। No work is done if the displacement is 0, as seen in the example above. A weightlifter holding a 150 kg mass steady on his shoulder for 30 seconds does no work on the load during this time. The force is 0. A block moving on a smooth horizontal table is not acted upon by a horizontal force since there is no friction, but may undergo a large displacement. The force is 0. A block moving on a smooth horizontal table. तो एक स्मूथ का हॉरिजॉन्टल टेबल है, इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसमें कोई ऐसा डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, जस्ट देयर इज नो फ्रिक्शन, बट इट्स मे अंडरगो लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस इज सो सिंस फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, rad 90 degree cos pi by 2 is equal to 0. For the block moving on a smooth horizontal table, the gravitational force mg does no work since it acts as a right angle to the displacement. क्या बोल रहा है? कोई ब्लॉक है, वो मूविंग हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर, लाइक दैट, तो उसमें कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स mg डज नो वर्क, कोई वर्क नहीं होगा, since it acts at right angles to the displacement. बस वो एक एंगल बनाएगा राइट एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ही राइट एंगल बनाएगा, ये बोल रहा है। If you assume that the moon orbits around the earth is perfectly circular, then earth's gravitational force does no work. The moon is instantaneous displacement is tangential, while earth force is radially inwards, theta is equal to pi by 2. अगर जब मून जो है, अर्थ का क्या होता है आपको पता है, ऐसा चक्कर लगाता है, द मून वही बोल रहा है, द अर्थ इज परफेक्टली सर्कुलर, देन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स does no work on the moon. The moon instantaneous displacement is tangential, वो tangential जैसा होता है, while the earth force is radially inwards, थीटा बराबर। तो जैसे ये है आपका अर्थ, सपोज दैट मून, तो चक्कर लगाएगा तो ये लाइक टेंजिबल,
टेंजेंटियल while the earth force is radially inwards, अर्थ का जो फोर्स रहेगा ग्रेविटेशनल वो इनवर्ड्स रहेगा। एंड थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई बाय 2। वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव if theta is between 0 degree and 90 degree, cos theta in equation 5.4 is positive। थीटा की वैल्यू जो है अगर वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तो वो पॉजिटिव होगा। इफ थीटा इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, cos थीटा इज नेगेटिव। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या बोल रहा है, थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री है तो cos थीटा पॉजिटिव रहेगा, थीटा का वैल्यू अगर 90 से 180 डिग्री है तो cos थीटा नेगेटिव होगा। In many examples, the frictional force opposes displacement and theta is equal to 180 degree, then the work done by friction is negative, cos 180 degree is equal to -1। From equation 5.4, it is clear that work and energy have same dimensions m and 2 t minus 2. The SI unit of this is joule, named after the famous British physicist जेम्स प्रेस्कॉट जूल 1711 से लेकर 1869 तक थे। Since work and energy are so widely used as physical concepts, alternative units abound and some kind of these are listed in table 5.1. Alternative units of work energy in joule, यहाँ पे सबकी वैल्यू दिया हुआ है, देख लेना। यार भी 10⁻⁻⁻, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, कैलोरी 4.186 जूल, किलोवाट आवर 3.6 into 10⁻6 जूल। नाउ अब हम मूव करेंगे एग्जांपल 5.3 पे। ऐसा कि जब भी पढ़ाऊंगा तो बहुत लोग ऐसा पढ़ाना चाहता है कि थ्योरी पढ़ाओ और एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिया जाए, या आप एग्जाम इतना पढ़ने के बाद, इतना थ्योरी पढ़ने के बाद आपको इक्वेशंस एंड डेरिवेशंस समझाया गया। अभी तक हमने थ्योरी ऊपर जितना भी पढ़ा वो थ्योरी था, थ्योरी पढ़ने के बाद इक्वेशंस पढ़े, उसमें इक्वेशंस थे वो समझा, उसके बाद हमने कुछ डेरिवेशंस भी समझे, और अब लास्ट में जब ये तीनों हो जाता है तो ये आपके दिमाग में सेटल डाउन तभी होगा जब अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप उसके पूरे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। अगर आप सिर्फ थ्योरी, इक्वेशंस और डेरिवेशन पढ़ोगे, एग्जाम्पल नहीं करोगे तो वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाएगा। तो अगर आप पूरा अच्छे से समझना चाहते हो तो इस एग्जाम्पल को भी आपको सॉल्व करना है। तो एक बार ये एग्जाम्पल आप होमवर्क है, एक बार देख के आओ कि क्या बोल रहा है। पहले आप पढ़ो फिर मुझे समझाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का कितना फोकस है फिजिक्स पे। तब आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल 5.3 से।